स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। प्रीवियस चैप्टर एग्रीकल्चर में हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर जो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ है। अब हम इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? माइंड इज इंडस्ट्री है क्या, राइट। तो जब मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया था तो आई हैड टोल्ड यू कि हम लोग डेफिनेशन याद नहीं करेंगे। वी विल रिमेंबर कि एक इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एंड जब हम लोग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो इनको बहुत सारे तरीकों में क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं। Then we have secondary resources where we deal with somewhat of manufacturing of certain goods, right? And then we had the tertiary sector, which is basically the service sector. तो अगर agriculture primary हो गया, so when you talk about industries, the kind of image that you have in mind, by that itself you can understand that it is something which is manufacturing certain products, right? These are big industries that are actually producing certain goods or providing certain specialized services. So what is an industry? It is a secondary, it falls in the secondary sector, and it is an economic activity where we are concerned with production of goods. तो यहाँ पे हम लोग goods produce करेंगे. We are also concerned with extraction of minerals. Okay, so there can be some industries that will be there in mineral extraction, and then there will be certain industries that will be providing certain services. So they can be of three kinds. That can be dealing with production of certain goods, that is manufacturing, or the extraction of minerals, or also providing certain kind of services. This is what an industry means. Okay, now giving you an example from your chapter itself, how do you get the paper that you use? If somebody is to answer me, they will tell me, and they would remember that in chapter 1 of your geography, when we spoke about resources, तो एक ट्री की इमेज बनी हुई थी, राइट? दिस ट्री, द वुड, इट प्रोवाइड्स अस विथ ultimately paper. Okay, now this paper, to be there for you in a copy or in a fancy textbook format which you are using, has to go through a lot of process. It has to be converted into pulp. Chemicals need to be added into it. Then stamping needs to be done. For example, you are using a classmate's copy, तो वो लोग अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे, and then finally you will have the textbook which you can use. So there is an entire process that is involved. A lot of chemicals are also required. इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं डील कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है. सो दैट इज व्हाई इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल द पेपर इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्रीज को हम लोग कई तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट डिड आई से? वी कैन क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स इनटू वेरियस टाइप्स. When you think of industries, you will not think of just one industry that exists. There will be a lot of industries that will come to your mind. So based on the raw material that is being used, what is raw material? Raw material is basically the input, one part of the input that is going into the process to give you some output, right? So do you remember this? One kind of input that is going through certain process to give you an output. Raw material is an input in this case, and based on the kind of raw material that is being used, you can classify the industry. For example, अगर आप plant and animal products को use कर रहे हो raw material में, तो वो एक agro based industry कहलाएगी. Okay, agro based. इफ द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे कि अगर लेबर यूसेज कम है, अगर कैपिटल कम है, राइट, अगर टेक्नोलॉजी इनकी थोड़ी सी ओल्डन है, सो देन यू विल क्लासिफाई इट एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप यू कैन क्लासिफाई इट इनटू प्राइवेट, public, or whatever that may be.
So based on this kind of factors, you will have to classify industries into various forms. Classification मतलब आप कई तरीकों की इंडस्ट्रीज को देखोगे, जिस तरीके की वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है या फिर उनकी साइज अगर छोटी है या बड़ी है, उन्हें कौन ओन कर रहे हैं, राइट? इज इट इन द प्राइवेट हैंड्स और द गवर्नमेंट इज ओनिंग इट? सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू classify the industries into various formats. So that is one thing. Now based on raw material क्या क्या industries हो सकती है? So one is agro based industry. अब जैसा कि नेम से ही आप देख रहे हो, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर में प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये हमारे रॉ मटेरियल रहेंगे. सो जस्ट ट्राई टू प्रोसेस दिस वंस एंड देन वी विल टेक इट फर्दर. अभी तक मैंने जो भी बोला एक बार देखिए. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी. सो बेसिकली एग्रो बेस्ड में आपके क्या क्या इंडस्ट्रीज आ जाएंगी? फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड इज रिलेटेड टू योर प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेबल ऑयल अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी. कॉटन टेक्सटाइल विल ऑल्सो बी एग्रो बेस्ड. डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में भी देखा था कि रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड यहाँ से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एंड लेदर, क्योंकि यहाँ पे लेदर किससे मिलते हैं? एनिमल से. टैनरीज जो होती हैं लेदर की, ये किनसे, मतलब कहाँ से you get this leather? So it is available from the animals. That is why agro-based industries, they use plant and animal-based products as the raw materials. Clear? Examples of agro-based industries also clear? क्योंकि जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो आप डेफिनेटली उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, उनके एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर लोगे. सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. और यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड. मिनरल बेस्ड अब क्या हो गया? मिनरल यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा. किसी भी मिनरल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हमने शायद चैप्टर 3 में पढ़ा था, मिनरल एंड मिनरल रिसोर्सेज. So from there, if you're identifying and using any kind of mineral, then that will be a mineral based industry. यहाँ से जो जनरली हमें आउटपुट मिलता है वो अन्य इंडस्ट्रीज में इनपुट की तरह यूज किया जाता है. सो द आउटपुट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू फीड द अदर इंडस्ट्रीज. ओके, इट फीड्स द अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो लोग इसके बेसिस पे ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मेड फ्रॉम आयरन ओर. Iron ore is a mineral, okay, and this iron is then used by the railways. So what is being said? यहाँ पे iron is acting as the feeder industry. What do you mean by feeder industry? Feeder industry वो होती है जिन पे और सारी इंडस्ट्रीज फीड करती है. मतलब ये आयरन से आपकी रेलवेज इंडस्ट्री चलेंगी, ठीक है, आपके बिल्डिंग्स बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस आयरन. सो आयरन इज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बट the railways and buildings are dependent on iron from iron ore. That is why iron is acting as a feeder industry. किसी चीज को फीड करना, उनकी सर्वाइवल आपकी सर्वाइवल पे डिपेंडेंट हो. So that is like a mother feeds a child. For the child to grow, it relies on the mother to feed the child, right? Similarly, the railways and the buildings industry and other industries, automobiles, etc., they rely on the production of iron. तभी वो लोग अपनी रेलवेज को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, बिल्डिंग्स बना पाएंगे. सो आयरन इंडस्ट्री एक्ट्स एज अ फीडर इंडस्ट्री फॉर देम. क्लियर? मिनरल बेस्ड इज ऑल्सो वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. और यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है? मिनरल ओर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मरीन बेस्ड. तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मरीन इज एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर. ओके, सो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे क्या रहेंगे? सी रहेंगी, ओशियंस रहेंगे. इनमें से अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो वो आपके मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो सी फूड वाली इंडस्ट्रीज होती है, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, एटसेट्रा. ओके, दिस विल बी योर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज.
फिश ऑयल को अगर मैन्युफैक्चर करोगे, फिश स्पा इज डन, राइट? फिश ऑयल इज यूज्ड फॉर अ वेरियस एक्टिविटीज, फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. सो दिस आर ऑल मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लोग मरीन सोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं, सच एज सी एंड ओशंस. सो व्हाट हैव वी लर्न कि रॉ मटेरियल्स में हम लोग एग्रो बेस्ड देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं. देन वी कैन सी मिनरल बेस्ड बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन मिनरल्स. देन वी ऑल्सो हैव मरीन बेस्ड बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन सी एंड ओशंस. ओके. देन वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड, और अब यहाँ पे नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, इट इज द रॉ मटेरियल हियर. व्हाट इज द रॉ मटेरियल हियर? एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज द रॉ मटेरियल हियर. और यहाँ से हमें पेपर्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, फर्नीचर मिलते हैं, बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑल ऑफ दिस. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वुड, टिम्बर एक्सेट्रा, एंड इनके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. तो फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली मेडिसिन. ओके. सो मेडिसिन इंडस्ट्री इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूस, एंड दैट इज वाई इट इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो अब हमने पहले तो क्या देखा, देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग रॉ मटेरियल, 1 second, yes. So raw material के basis पे we classified it into 4 types. What were the 4 types? Agro. Then we moved towards mineral. Then there was another M which was marine. And then we studied the forest based resources, right? So we classified raw material industries into 4 types. क्या क्या examples है वो भी आपको समझ आ गया. Now going to the size. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कितना हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना हमें उससे आउटपुट मिल रहा है, उस साइज के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन भी हमें बहुत बल्क में मिल रहा है, हम उससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट विल नॉट बी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगा, सब कुछ इसमें आपका स्मॉल होगा. सो कैपिटल मतलब जो मशीनरी आप यूज कर रहे हो वो भी स्मॉल होगी, लेबर जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी कम क्वांटिटी में रहेंगे, एंड प्रोडक्शन भी आपका थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा. ओके. इट वोंट बी वेरी ह्यूज. These are industries that don't have enough money. Also, they don't require too much of technology. So, these are still traditional based industries. And इसीलिए हम इन्हें small scale industries कहते हैं. For example, cottage industries, जहाँ पे हैंडलूम वगैरह हो गया. Silk industry, which is silk weaving. यहाँ पे कम यूज होती है टेक्नोलॉजी की, और इसीलिए स्मॉल स्केल में काम चलता है. So this is all those related to weaving, handlooms, okay? This kind of industries will be a part of your small scale industries. So characteristics क्या क्या रहेंगी? Capital investment low रहेगा, number of people working will be low, and production की volume भी बहुत कम रहेगी. Apart from that, we can have large scale industries. एक medium based enterprises भी होते हैं जिसे हम MSMEs कहते हैं. These are medium and small enterprises, okay? Medium and small enterprises. तो इस टाइप के इंडस्ट्रीज भी होते हैं. इसको गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा देती है बिकॉज दे जनरली आर सेटअप बाय पीपल हु आर नॉट वेरी रिच. एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग सेटअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाटाज, बिरलाज, ओके, अंबानीज, those industries set up by them, those business groups set up by them will form a part of this large scale industries. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सक रहे हो, हैवी मशीनरी यूज होगी, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी बहुत ही अपडेटेड रहेगी, यू विल बी यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ही कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? It is not about my volume that ma'am please increase your volume or decrease your volume. Volume here means quantity. Okay. Volume here means quantity. जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे इसका मतलब आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. सो ये वाले इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, कार्स, ओके, बिग हैवी बसेस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो ऑटोमोबाइल्स कई ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के बनते हैं.
You will see that very high end cars are available these days. तो इसके लिए बहुत ही अच्छी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए होते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी. So production of automobiles, heavy kind of machineries, this will be a part of large scale industries. On the basis of ownership, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि on the basis of ownership, कौन किसे ओन करता है उस बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट, जैसा कि हमने देखा था प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड, राइट. तो प्राइवेट मतलब क्या होता है कि आप इसे इंडिविजुअली ओन कर रहे हो या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके इसे ओन कर रहे हैं. ठीक है, ये प्राइवेट हैंड्स में है, इसमें लोगों का कुछ लेना देना नहीं है. जस्ट अ मोमेंट. सो सॉरी. एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि दिस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भी नवरत्न एंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं, 9 इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी 51% या ज्यादा होनी चाहिए, तो वो पब्लिक इंडस्ट्री कहलाएगी. And private is something that is owned by a group of individuals. Okay, so public industries जहाँ पे government की stake होगी, and private is something that the private players are owning. This will be mainly for profit motive. And public में क्या रहेगा कि जो चीजें private sector नहीं provide कर पा रही है, so उसमें government will come in and they will try to provide the things. जॉइंट सेक्टर इज अनदर सेक्टर. अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जहां पे कुछ पोर्शन प्राइवेट के हाथ में होंगी और कुछ पोर्शन पब्लिक के. सो क्या होगा, ये लोग जॉइंटली इसे ओन करेंगे. सो दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज द जॉइंट सेक्टर. ओके, इट विल नॉट बी ओन्ड बाय ओनली वन सेक्टर. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड. सो मारुति ब्रांड के जो कार्स आपको दिखते हैं वो बेसिकली दोनों के बीच की होल्डिंग है, बोथ state and individuals. Okay, neither the government is totally controlling it nor individuals are totally controlling it. So it is basically a joint venture of both the public and the private. एक होती है कोऑपरेटिव सेक्टर. अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होती है? अगर मैं आपको क्लास में बोलती हूँ प्लीज बच्चों कोऑपरेट करो, लेट मी टीच यू, आफ्टर दैट वी विल हैव सम फन सेशन. That means I'm telling you to please keep quiet and listen to me, follow the lecture so that you are able to understand, right? So cooperate, यहाँ पे भी similarly अगर आप समझोगे तो cooperative मतलब यहाँ पे ये लोग cooperate करके कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं and they try to start up an initiative. So it is a cooperative sector जहाँ पे कुछ लोग they have come together, सबने रुपए जमा किए हैं, ठीक है, या फिर इनको फंडिंग मिली है कोई कोऑपरेटिव से, एंड देन दे हैव स्टार्टेड सम वर्क. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हो. इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ये एक गुजरात के रीजन में स्टार्ट किया गया था. ओके, एंड जो आप दिल्ली वगैरह में मदर डेयरी देखते हो, मदर डेयरी के बहुत सारे आउटलेट्स रहते हैं from where you can take milk, which is known as Sudha dairies also. So ये सारे आपके cooperative sector के examples हैं. Most successful amongst the cooperative sector example is the example of Amul butter. अमूल के और भी कई तरीके की products आती हैं, right? अमूल cool milk, okay, and cheese, etc. Okay, so there are a lot of products जो कि एक cooperative ने start किया था, and that cooperative is basically Amul. सो आप इस इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो कि वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बिलोंग करती है, क्योंकि इट इज नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ना ही गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है. कुछ लोग इकट्ठा होकर के इसे ओन किए हैं और इसे रन कर रहे हैं. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देख ली, ठीक है, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी ये भी समझ लिया, वेरियस एग्जांपल्स देख लिए. अब ये इंडस्ट्री की लोकेशन के क्या रीजंस होते हैं?
कभी कभी आप देखोगे कुछ इंडस्ट्रीज एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा लोकेटेड है, while the rest of the crowd does not have any industries. Okay, so that will not, that will give you a reason as to what are the factors for location of industries. So factors for location of industries, एक हो जाती है आपकी availability of raw material, एक हो जाता है land कितना है, water कितना है, थर्ड इज क्या वहां पे चीप लेबर अवेलेबल है कि नहीं, एंड फोर्थ इज व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल यू हैव. सो अब ये मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल एक कोल इंडस्ट्री है तो इट विल रिक्वायर वेरियस थिंग्स, एंड फर्स्ट थिंग इट विल रिक्वायर इज कोल. तो जब हमने मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे कोल देखने को मिलता है. सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो ज्यादातर कोल की इंडस्ट्रीज यहीं मिलेंगी. लैंड वहां पे कितना है, क्योंकि यूजेस ऑफ लैंड में वी हैव स्टडीड दैट वन ऑफ द यूजेस ऑफ लैंड इज टू सेट अप इंडस्ट्रीज. अगर लैंड नहीं रहेगा तो आप इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप करोगे. वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो इंडस्ट्रीज कैसे रन करेंगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. If there is no labor, who will go to the coal fields, extract the coal, transport the coal, etc. So labor, population has to be there. आप बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में जाकर के एक इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते हो, बिकॉज आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी. सो लेबर हैज टू बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल, इफ यू हैव मोर मनी देन यू कैन सेट अप अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इफ यू डोंट हैव इनफ कैपिटल तो आप मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर पाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सेंटर्स पे नहीं सेटअप कर पाओगे. You have to choose different small spots. So these are the factors that influence कि एक इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होगी. अब आप कोल की इंडस्ट्री को उस रीजन में ले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ले जाओगे फॉर एग्जाम्पल, वेयर देयर इज नथिंग, और यू विल टेक इट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि आपको तो उतनी कॉस्टिंग लग जाएगी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. If there is no labor, then you will have to hire people from outside. That will also increase your cost of production. तो फिर आप बेचोगे क्या, and how will you get the profit? So that is why there are certain factors for location of industries, and these are the factors. What are the other factors? देखिए कभी कभी क्या होता है, अब जैसे आपने बोला या फिर आपने समझा, मैंने बोला कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स बन जाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से वहां पे और कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं. तो इससे क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन डेवलप कर जाता है. बट बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड रीजन्स हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती. सो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट लीव दो स्पॉट्स ऐसे ही, उनको तो वो वाले एरियाज को भी डेवलप करने होंगे. सो इट सेज दैट ओके, आई विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो रेट, यू सेटअप द इंडस्ट्री. अगर आप बैकवर्ड एरिया में सेटअप करोगे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको सब्सिडाइज पावर दिलवा दूंगा, तो आपको यहाँ पे सेटअप करनी होगी इंडस्ट्री. आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बेयर कर लूंगा, तो यू हैव टू सेटअप द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स. इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो प्लीज सेटअप रीजन्स, इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कभी कभी कुछ इंसेंटिव्स दी जाती हैं for this industrialists to set up industries in the backward regions. And ये किस तरीके की incentives होती है? इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड रेट में मिल जाती है. सब्सिडाइज्ड मतलब कम रेट्स में. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को गवर्नमेंट बेयर कर लेती है. Government also provides them with certain kind of buildings and infrastructure that they would require, so that the backward areas of the country are also able to develop. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज. ठीक है, रीजन की मीनिंग क्या होती है? रीजन इज बेसिकली अ सर्टेन एरिया. तो अब कुछ एरिया बहुत डेवलप है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हो गया, एंड अब कोई एक गांव को ले लो, ठीक है, एनी स्मॉल टाउन, सो दैट विल बी वेरी बैकवर्ड. सो अब दिस इज वेरी हाई एंड दिस इज वेरी बैकवर्ड अ विलेज. तो इसमें क्या हो गया, रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई. तो गवर्नमेंट ट्राइज टू फॉलो दिस स्टेप्स ताकि ये रीजनल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए और थोड़ा बहुत हम लोग इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाए.
So government tries to develop backward areas by following steps? If these options are there, all of this is going to be correct. I hope this is clear. Now coming to what is industrial system. जैसे कि जब हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था तो मैंने बहुत क्लियरली आपको फार्म सिस्टम के बारे में पढ़ाया था. एक सिस्टम क्या होता है मैंने आपको उसका भी एग्जांपल दिया था, that we are using NCERT as input. The process is teaching. I am trying to teach you. The process is also learning. You are trying to learn from me. And the output is the mark sheet that we are getting. The kind of people that you are going to become tomorrow, that is the system. क्योंकि एक सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है. सिमिलरली आप इसको इंडस्ट्री के तरीकों में देखो कि इंडस्ट्री में भी कुछ इनपुट्स रिक्वायर होंगे, कुछ प्रोसेसेस आपको करने होंगे ताकि आपको एक आउटपुट मिल सके. सो दिस इज व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम. अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट्स विल रिमेन द सेम. रॉ मटेरियल चाहिए होगी, लेबर यू विल रिक्वायर, दैट इज पीपल. यू विल ऑल्सो रिक्वायर लैंड. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए होगी ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको गुड्स को. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक यू विल रिक्वायर अ स्पेस जहां पे आपके पास प्रॉपर बिल्डअप फैसिलिटीज हो ताकि यू कैन कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. और आउटपुट आपका क्या रहेगा? आउटपुट आपके फिनिश प्रोडक्ट्स रहेंगे और जो आप इनकम अर्न करोगे वो आपकी आउटपुट हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम. Now, what are the various industrial regions in the world? Region मतलब spaces, areas. Okay? जैसा कि अभी बताया, regional inequalities को कम करना है. क्या करना है? Regional inequalities को कम करना है. जो regions developed है उनको तो developed होने दीजिए, but जहाँ पे कुछ नहीं है उनको भी develop कीजिए. इससे आपकी inequality दोनों areas में कम हो जाएगी. So, what are the important industrial regions? We are going to look at that. अब ये इंडस्ट्रियल रीजन्स होते कैसे हैं? कैसे कोई एक रीजन इंडस्ट्रियल रीजन कहलाने लग जाता है? सो व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अन्य इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि दिस इज द फीडर इंडस्ट्री, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई तो आसपास और कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी क्योंकि इनको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो सब इंडस्ट्रीज अब अपने दे विल शेयर बेनिफिट्स अमंगस्ट ईच अदर. बेनिफिट्स विल बी शेयर्ड, तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाता है, प्रॉक्सिमिटी हो जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिटी? योर हाउस एंड माई होम इज नियर. ओके, यू कैन कम टू माई होम इजिली, आई कैन गो टू योर होम इजिली. सो वी कैन मेक लर्निंग वेरी सिंपल. But if the place is very far away, if your school is very far away, तो आपकी cost increase हो जाएगी. You will have transport. आप ज़्यादा tired होगे. So what happens is it will be little difficult. And here what will happen, if industries are close to each other, they are in close proximity, मतलब आसपास located है, तो वो लोग अपनी एक दूसरे की benefit share कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टेम्परेट एरियाज में. ओके, नॉट ट्रॉपिकल, जहां पे टेम्परेट क्लाइमेट हो वहां पे देखने को मिलेंगे. सी पोर्ट्स के नजदीक देखने को मिलेंगे बिकॉज इंडस्ट्रीज दे रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो अगर सी पोर्ट्स रहेंगे तो इट इज वेरी इजी टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स. ऑल्सो देयर इज गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एंड कोल एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है. So they will try to set up near the coal fields, okay, so that they can obtain the coal from nearby areas. Based on this factors, कोई एक region industrial region में classify हो जाता है. Major industrial regions of India क्या क्या हो सकते हैं? एक बार इस मैप को देखिए and जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. एक है मुंबई पुणे cluster. So why is Mumbai Pune cluster an industrial region of India? Can you think of certain examples? Why is Mumbai Pune cluster an industrial region of India? Because Mumbai has a lot of industrialists. यहाँ पे काफी scope है. The weather here is also suitable. Location of market with nearby areas is also very good. तो ये एक cluster में develop कर गया. After that you have Bangalore, Tamil Nadu region, क्योंकि यहाँ पे service sector बहुत अच्छी है. आज जॉब्स की आप बात करोगे, आईटी जॉब्स की आप बात करोगे, तो बैंगलोर के बिना देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस इन इंडिया एंड देर आर नो सच गुड ऑप्शंस देन बैंगलोर.
हुगली बेसिन, क्योंकि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड। अहमदाबाद, दिस इज फॉर क्लॉथ इंडस्ट्री। जब आप अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत ये सब की बात करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। एंड एक है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये एक बहुत ही मिनरल रिच रीजन है झारखंड का, मिनरल रिच, ओके, झारखंड में। सो दैट इज व्हाई दिस ऑल प्लेसेस, बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेजेस, दे हैव बिकम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर दी अदर्स? विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है। विजाग पोर्ट, दिस वॉज फेमस सिंस एंशियंट टाइम्स, तो ये आज तक चल रहा है। गुड़गांव, दिल्ली, मीरठ, अगेन गुड़गांव हैज द DLF, गुड़गांव हैज अ लॉट ऑफ जॉब फैसिलिटीज, ओके, टेक्नोलॉजिकल हब बन गया है ये। दिल्ली इज ऑल्सो द कैपिटल, मीरठ भी इसी तरीके से डेवलप हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कुछ समय पहले गुड़गांव में देयर वाज नथिंग, विद द दिल्ली बीइंग कैपिटल एंड दिल्लीज डेवलपमेंट, गुड़गांव ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग। अब ये जब रीजन डेवलप हुआ तो इन एंड अराउंड, जैसे कि नोएडा रीजन ऑफ यूपी, यहाँ पे भी कई इंडस्ट्रीज आ गई, कई सारी कंपनीज आ गई। सो दिस इज हाउ वन इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर। एंड जब बहुत सारी एक जगह आ जाती है तो वो एक प्रॉपर रीजन में कल्मिनेट हो जाती है। कोल्लम, थिरुवनंतपुरम, दिस इज केरला एरिया, दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल रीजन। You can have a look at the map so that you have better idea. और वर्ल्ड की अब मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? एक आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऑब्वियसली, क्योंकि ये फीडर इंडस्ट्री है। सारे इंडस्ट्रीज के डिपेंडेंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे है, बिकॉज आयरन इज समथिंग दैट वी यूज एवरी डे। द सेफ्टी पिन्स दैट यू यूज, एक छोटी से छोटी चीज, नीडल से लेकर के रेलवेज, ओके, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब में आयरन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। देन यू हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द क्लॉथिंग इंडस्ट्री, ओके, एंड यू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली बात क्या है कि ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग इंडस्ट्री? इसका मतलब ये लोग सनराइज इंडस्ट्रीज है, ये अभी उभर के आ रही हैं। ये पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। सो दिस आर इमर्जिंग, ओके, दिस आर कमिंग अप एंड दिस आर गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ टुमारो, सच एज IT हो गई। और कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है इसमें? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? एनी अदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज will form a part of emerging industry. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, रोबोटिक्स हो गए, ये सारी आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में आएंगी। इसे हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? यू शुड नो। एंड which industries are referred to as sunrise industries? Emerging industries. They are going to be the future generation industries. They are going to have a lot of demand in the future. नाउ कमिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ फीडर इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें काफी सारे इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, सच एज स्मेल्टिंग। अब ये स्मेल्टिंग क्या होता है? इसमें एक प्रोसेस होता है जहां पे आप हीट करते हो आयरन ओर को, एंड देन यू ब्रेक इट इनटू सर्टेन प्रोडक्ट्स, ओके, एंड देन यू ऑल्सो रिसीव आउटपुट्स। तो इस तरीके के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए हम इसे एक इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या इनपुट्स की जरूरत होती है? ऑब्वियसली, जैसा कि नेम है, तो आयरन और कोल की भी जरूरत होती है, ऑल्सो लाइमस्टोन। इससे क्या होता है? बहुत तरीके के अलॉयज बन जाते हैं। अलॉयज इज मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, जिससे आपका कोई मेटल बन जाता है, ओके। अलॉन्ग विद लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगा, साइट मतलब प्लेस जिसे हम लैंड भी कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्मेल्टिंग। इसके अलावा फर्नेसिंग होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेसेस में इन्हें डाला जाता है और ब्लास्ट किया जाता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स। सो दिस इज द प्रोसेस इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमें आयरन एंड स्टील के फॉर्मेट में मिलता है, और इस फॉर्मेट को, इस आउटपुट को अन्य इंडस्ट्रीज यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल।
तो उनकी डिपेंडेंस इस पे है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना तो कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं सकती. So iron and steel serves as the raw material for those industries, and that is why iron and steel industry is known as the backbone of other modern industries. Backbone क्या होता है? If you don't have a backbone, you can't stand straight, right? So this is the backbone. This helps the other industries to survive. If the iron and steel industry is not there, many industries will collapse. Many industries will not be able to carry out their work. So this is the meaning of being a backbone of something. It is so because various things, अब जैसे कि आप जहाज देख रहे हो, ट्रेन्स देख रहे हो, ट्रक्स देख रहे हो, बड़े बड़े ऑटोज देख रहे हो, ये सब स्टील से बनते हैं. So is it wrong to say that steel is the backbone? No, it is not wrong. Definitely it is the backbone. तभी तो ये सारी चीजें बन के आई हैं. अगर स्टील नहीं रहेगा तो you will not have this kind of industries also. So everything will stop because it is dependent on steel.